Class 11th, we are starting our first topic, that is dimensional analysis. So first thing, what is physical quantity? We have already gone through these some facts in our class 9th. I'm just going to recall all those quantities, all those facts. Physical quantity is anything which can be measured. For example, loudness of sound is a physical quantity because we can measure it using the instruments. But emotions in the sound of the speaker, that sound of a speaker, we cannot measure it through instruments. So for physics, emotions are not a physical quantity. Then physical quantities are of two types: fundamental and derived. You know that fundamental quantity is that quantity which is independent, which cannot be expressed in terms of any other quantity, right? And mostly we have three fundamental quantities which we have to deal with in our regular physics, that is mass, length and time. We represent mass with alphabet M, capital M, length with capital L and time with capital T. But there are total 7 and we should say 9 fundamental quantities which are independent, which cannot be expressed in terms of each other. Mass, length and time are those quantities which we are going to deal with every day. But current, temperature, luminous intensity, that means light की intensity, and amount of substance. Mass is for the big masses, but if I talk about the mass of a gas, mass of an atom, mass of some atoms, then we, for the small amount of mass, very small amount of mass at the atomic level, at the molecular level, the mass of the substance is represented with the quantity mole, and for it we use the symbol MOL. Current, since current is represented with the unit ampere, so we take the symbol of current as capital A. टेम्परेचर, टाइम के लिए हम T यहाँ पर एलोकेट कर चुके हैं, तो टेम्परेचर को हम थीटा या K सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD, क्योंकि इसकी यूनिट होती है कैंडला, तो यहाँ से हमने उठाया C और D, तो CD से हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बार बार पूरा लिखने की जगह हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उनको हमें कम लिखना पड़े, थोड़ा लिखना आसान हो जाए. कहाँ पर? डायमेंशनल एनालिसिस में. तो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है डायमेंशनल एनालिसिस. ये बात हमको अब तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले बात की फिजिकल क्वांटिटी की, देन वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो इन द सेंस, कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम टेक द फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेलोसिटी, एज एरिया, ले सकते हो. लेकिन फिर वेलोसिटी, एरिया वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से. जैसे लेंथ और एरिया दोनों आप एक साथ एक क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में नहीं पाएंगे. यानी एरिया तो आपने फंडामेंटल अगर क्वांटिटी ले लिया, तो क्योंकि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी लेंथ इनटू लेंथ, तो फिर आप लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे. अगर उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो टेकिंग एरिया एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप ये तय जानो कि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी उस क्वेश्चन में. खैर, ये सब चीज़ें तो हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में रिलेटेड कोई टॉपिक समझने जा रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी अभी हम देखेंगे. तो चलो एक बार डिराइव्ड क्वांटिटी को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं.
Now you can recall derived quantities were those quantities which were expressed in terms of fundamental quantities, है ना, जैसे velocity. Velocity can be written as displacement upon time or distance upon time. Speed कह दे तो distance upon time. अब distance या displacement क्या है? Length है. तो length upon time that is velocity. तो हमने देखो लेंथ और टाइम के टर्म्स में वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दिया. तो लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल हो गए और वेलोसिटी हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी. अब लेंथ को तुम टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ को तुम मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मास को तुम लेंथ या टाइम के टर्म्स में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की खासियत क्या है कि जो भी है 9 को कंसीडर करो, 7 को कंसीडर करो, 3 को कंसीडर करो, लेकिन वो एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती. तो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है फिज़िक्स के वर्ल्ड में. अब आता है सवाल, ये डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस से क्या मतलब है. तो पहले कुछ फील लेते हैं. देखो, एक एरिया की बात करें हम, ये एक हमने छोटा सा पीस ऑफ पेपर लिया है और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब अगर मैं कहूँ कि ये 2 डायमेंशनल है, ये पेपर 2 डायमेंशनल है क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ और ब्रेथ. तो तुमको कुछ बात फील होगी, हाँ इस तरह से तो हमने मैथ्स में भी कुछ बातें पढ़ी हैं. अगर मैं अब इस ऑब्जेक्ट को लूँ जिसमें थिकनेस भी है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये देखो थिकनेस भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. इसके पास 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है. तो ये भी तुम्हें फील होगा, हाँ हमने इन सब चीज़ों को इससे पहले सुना और पढ़ा है. अब आ जाओ वेलोसिटी पर, थोड़ा सा अलग सोचते हैं. एरिया 2 डायमेंशनल हो गया, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल हो गया. अब आ जाओ वेलोसिटी पर. वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है कहते नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन. मतलब आप एक एग्जांपल लो सिंपल सा, ये आपका घर और ये आपका स्कूल. आप अगर यहाँ से घर से स्कूल की तरफ चल रहे हो तो आपकी पोजीशन लगातार बदल रही है. पर सोचो, अगर मैं कहूँ सिर्फ पोजीशन बदल रही है, तो क्या सिर्फ पोजीशन बदल रही है? क्या आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पोजीशन के साथ साथ क्या टाइम नहीं बदल रहा है? तो वेलोसिटी ना सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है बल्कि टाइम पर भी डिपेंड करती है कि आप इस पोजीशन तक कितनी टाइम में पहुँचे. जो इस पोजीशन को या इस डिस्प्लेसमेंट को जल्दी कवर करेगा वो ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, जो स्लो कवर करेगा वो स्लो वेलोसिटी से चल रहा है. लेकिन इसको थोड़ा और डेप्थ में फील करो. पोजीशन को आप ध्यान दो, आप पोजीशन कैसे किसी ऑब्जेक्ट की निकालते हैं, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में. इस पॉइंट पर अगर आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स जेड प्लेन पर, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा यहाँ से. और इसी तरह से अगर आप वाई और जेड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो आपको वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा. तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्चुअली आपके पोजीशन को लोकेट करता है. तो जीपीएस सिस्टम कैसे लोकेट करता है पोजीशन को, वो एक्स वाई जेड को ऑब्जर्व करता है कि उसकी स्पेस में पोजीशन कहाँ है, और साथ में वो वेरिएबल एक और है जो आपके मूवमेंट के साथ कार के चेंज हो रहा है, दैट इज टाइम. तो वो 4th वेरिएबल पर भी नज़र रखता है, टाइम पर. और तब वो आपको जो लोकेशन आपकी जो लोकेट करता है वो एक्स वाई जेड और टाइम, चारों वेरिएबल्स की हेल्प से आपको आपकी पोजीशन बताता है. तो हम क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड 4 डायमेंशनल है, इसीलिए क्योंकि टाइम को हम कहते हैं कि 4th डायमेंशन है, क्योंकि आपकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए
जीपीएस सिस्टम को, सैटेलाइट को XYZ के साथ टाइम भी चाहिए। तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड स्पेस में है और चौथा डायमेंशन है टाइम। ये डायमेंशन वर्ड की सेंस है, फीलिंग है। तो ये जो डायमेंशन वर्ड है, इसका फिजिक्स में जो सेंस आता है वो रियलाइज हो रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जीपीएस के थ्रू लोकेट करते हैं तो जीपीएस इन 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है आपकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स और टाइम। तो जीपीएस के लिए आपकी पोजीशन के 4 डायमेंशंस हैं। अब आप वेलोसिटी पे आ जाओ। अगर आप वेलोसिटी को जानना चाहते हो तो आपको पोजीशन भी पता होनी चाहिए और टाइम भी। यानी वेलोसिटी के 2 डायमेंशंस हैं, पोजीशन और टाइम। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वेलोसिटी डिस्पोजिशन पर और पोजीशन तो मैम XYZ कोऑर्डिनेट है, तो फिर मैं कहूँगी कि वेक्टर में पोजीशन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। उसमें जब हम पोजीशन लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है और फिर उसमें फाइनली जो बाहर निकल कर आता है वो सिर्फ लेंथ आती है, क्योंकि वो हम वेक्टर में जब पढ़ेंगे तब तुम वापस कोरिलेट कर पाओगे। तो अभी उसके लिए परेशान नहीं हो। अभी तो तुम ये सोचो कि वेलोसिटी पोजीशन पर और टाइम पर डिपेंड करती है और पोजीशन का नेचर क्या है। पोजीशन का नेचर है लेंथ बाई कितना चल गए, यही तो है ना पोजीशन, कि घर से कितनी दूर चले आए, हमारी पोजीशन इतनी है। और डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ना सिर्फ ये बताएंगे कि हम घर से इतनी दूर चले आए, बल्कि ये भी बताएंगे कि हम नॉर्थ में चले, ईस्ट में चले, नॉर्थ ईस्ट में चले। इससे मेरी पोजीशन लोकेट हो पाएगी। खैर, तो वेलोसिटी इन 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो अब समझो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी के 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ और टाइम। और जब हम लेंथ अपॉन टाइम लिख कर उसके बाद सिंबल्स को यूज़ करके और उसके बाद L के साथ T को ऊपर ले आते हैं तो ये -1 हो जाता है और ये +1 हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी हैज़ डायमेंशन 1 इन द क्वांटिटी लेंथ एंड -1 इन द क्वांटिटी टाइम। फिर से सुनो बात को, velocity has dimension 1 in the quantity length and -1 in the quantity time। तो असल में मैंने किसके बारे में बात की? I talked about power raised to the physical quantities कहाँ थी ये फिजिकल क्वांटिटीज? इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी थी? ये फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली थी फंडामेंटल। कुछ बात समझ में आई? हमने पहले वेलोसिटी को उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जिनके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर हमने लेंथ और टाइम जो क्वांटिटी जिन पर वेलोसिटी डिपेंड करती थी उनकी पावर्स को ऑब्जर्व किया और हमने कहा कि वेलोसिटी हैज़ पावर 1 और 1 इन द डायमेंशन ऑफ लेंथ and power -1 in the dimension of time. So actually what is dimension? Dimension is power raised to the fundamental physical quantities in the expression of derived quantity. derived quantity को ही तो हम physical quantities के terms में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये डायमेंशन की एक डेफिनीशन हुई और इसके बैकग्राउंड में उसकी फील चल रही है कि भाई पावर का डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, वो आपने इस एग्जाम्पल से समझा। धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, क्लियर होंगी। तो आप जितना समझ में आए उसको तो समझ के आगे बढ़ो और जहाँ पर कंफ्यूजन लगे
वहाँ पे उसे थोड़ी देर सोचो, पूछो, फिर सोचो, चर्न करो जो कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आई वुड सजेस्ट कि उसको बहुत बर्डन मत लो कि ये बात तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज कि कुछ दिनों बाद वो बात तुम्हें बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के समझ आ गई। तो थोड़ा सा हम उस पॉइंट को टाइम देंगे जो पॉइंट हमें कंफ्यूज ज़्यादा कर रहा है और समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ी कोशिश करने के बाद हम उस पॉइंट को छोड़कर कुछ दिन बाद फिर से उस पर वापस आएंगे। ये एक तरीका है कि आपको किसी सब्जेक्ट से डर नहीं लगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम दो बातों पर ध्यान देंगे। अगर मेरे से कहा गया कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बताओ, तो तुमने देखो मैंने कैसे लिखा है, तुम देखो वेलोसिटी को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। देन these square brackets means dimension of length and dimension of time, and then I have written LT minus 1. This is dimensional formula of velocity. Dimensional formula of velocity. ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब कुछ क्वांटिटीज़ के सबसे पहले, कुछ भी और करने से पहले हमको जो क्वांटिटीज़ रेगुलरली डील करनी है उनके डायमेंशनल फार्मूले लिखने हमको आने चाहिए। और 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन you will have just for writing the dimensional formula of a given quantity. तो कुछ क्वांटिटीज़ तो आपको पता होंगी और कुछ क्वांटिटीज़ बेटा आपको जाननी होंगी जो आप बाद के टॉपिक्स में जानोगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस में आपको उन क्वांटिटीज़ को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका पाके उनका फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, तभी हम डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला किसी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिख नहीं पाओगे, और जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखोगे तो उनकी पावर्स ही तो डायमेंशंस हैं, और पावर के साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब लिखा तो वही तो डायमेंशनल फार्मूला है। तो अब फटाफट हम कुछ बहुत शुरुआत करते हैं ईजी से, कुछ पॉपुलर क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं। एंड यू विल स्टार्ट अलॉन्ग विद मी, आप मेरे साथ साथ करोगे ये। तो सबसे पहला क्वांटिटी हम लेते हैं डायमेंशंस ऑफ एरिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही तो लेंथ है ना, तो हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे ध्यान दो, क्योंकि आपको आंसर कॉपी में रिप्रेजेंटेशन टेक्निकली करेक्ट लिखना है, और आंसर हमारा हो गया L2। अब आते हैं वॉल्यूम, यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आई होप आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क चल रहा है। अब आते हैं डेंसिटी पर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ भी हमने लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लिखा था, हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए, तो आप वॉल्यूम के साथ नहीं जा सकते। तो आप मास को तो नहीं टच करोगे क्योंकि वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट यू विल राइट वॉल्यूम एज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। Dimension of mass is m. Dimension of length is, in fact I should write like this, dimension of mass is m, dimension of length is L, dimension of breadth is also length, and dimension of height is also length. So your dimensional formula will be ml minus 3, ml to the power 3, l को ऊपर ले गए तो -3। ये क्लियर हो रही है बात।
इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेशन इफ यू राइट इट लाइक दिस, डायमेंशन ऑफ लेंथ into dimension of breadth. And then you will write, and then you write dimension of length L, dimension of breadth L, and then L2. अगले क्वांटिटी पर चलते हैं. वेलोसिटी की बात हम कर चुके हैं, तो अब हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. कीप ऑन डूइंग इट विद मी. Now acceleration can be written as change in velocity upon change in time. Now listen to this analysis carefully. आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो वेलोसिटी ही तो होता है. इसी तरह से फाइनल टाइम में से जब आप इनिशियल टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो टाइम ही तो होगा. तो हमको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल है. हमें मतलब है नेचर ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज़ वेलोसिटी. नीचे नेचर ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज़ टाइम. तो आपने लिखा, हमने इसको इस तरह से लिखा, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन, अब चेंज की हमें ज़रूरत नहीं है. वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम. Now velocity's dimension you can write dimension of displacement. इसको ध्यान से देखना है रिप्रेजेंटेशन तुम्हें. अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, यही तो होता है ना वेलोसिटी, और साथ में ये टाइम नीचे पहले से है, तो इसको आप साथ में लिखोगे डायमेंशन ऑफ टाइम. सो इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव टू टर्म्स ऑफ टाइम. Now dimension of displacement is length, dimension of time is t, and time is t. So dimension of acceleration will be L upon t square or Lt minus 2. So acceleration, dimension of acceleration is Lt minus 2. Clear हो रही है बात? आगे आते हैं फोर्स पर. Force can be written as mass into acceleration. Now mass has, now if I want to write dimensional formula of force, then I will write square bracket and then force. Dimensional formula of force is dimensions of mass and dimensions of acceleration, and then acceleration का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस m. तो वी विल राइट m एंड दिस होल प्रोसेस विल गो फॉर डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन. अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने को आता है, इट्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप सीधे Lt minus 2 यूज़ नहीं करेंगे. आप पूरा एक्सेलरेशन को पहले आप इस टर्म्स में लिखेंगे, फिर वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से इन तीनों क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल सिंबल्स लिखेंगे, और तब आप इस तरीके से आंसर पे पहुंचेंगे. लेकिन हमने अभी इसको किया है, तो हम यहाँ पर सीधे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं Mlt minus 2, डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ वर्क or dimensions of energy, it is force into displacement. So work का dimension पाना है तो आपको force का dimension लिखना होगा और displacement का dimension लिखना होगा. So dimensions of force, अब देखो अगर वर्क का आया तो आपको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना होगा पहले, फिर एक्सेलरेशन के लिए आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना होगा, और उसके बाद आप फोर्स के डायमेंशन पर पहुंचोगे. पहले आप लिखोगे फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन का पूरा प्रोसेस करोगे, तब आप फोर्स के डायमेंशन पर पहुंचोगे यहाँ, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ का डायमेंशन साथ में चलता रहेगा. लेकिन यहाँ हमने क्योंकि अभी कैलकुलेट किया है तो यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं.
फोर्स का डायमेंशन mlt minus 2 and displacement has dimension of length. So it is ml2 t minus 2. Now come to momentum. Dimension of momentum. It is dimensions of mass into dimension of velocity. यहाँ पे देखो क्या काम आ रहा है, अगर हमें मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी पता है तभी तो आगे लिख पाएंगे. इसके बाद यहाँ पर मैं तुमको पूरा करके ही दिखा देती हूँ. डायमेंशन ऑफ मास लिखोगे और उसके बाद डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी में लिखोगे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम. देन मास का डायमेंशन सिंबल m से, डिस्प्लेसमेंट l और टाइम का t. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम विल बी mlt -1 सॉरी. ठीक, मोमेंटम हो गया. इसके बाद आ जाते हैं टॉर्क पर. ये क्वांटिटीज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए इनको सीखना इजी है. टॉर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, that is force into perpendicular distance of line of action of force from the point of rotation. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और फिर अगर आपको टॉर्क का डायमेंशन चाहिए तो पहले आप फोर्स का डायमेंशन लिखो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन लिखो. तो फोर्स का तो हो गया mlt-2 और डिस्टेंस का l, तो ये आपका हो गया ml2t-2. अब ध्यान दो, टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, पर ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम नहीं है. तुम्हें पता है वर्क इज समथिंग एल्स एंड टॉर्क इज समथिंग एल्स. सो इट जस्ट टेल्स दैट द नेचर ऑफ द टू क्वांटिटीज इज सेम, इनके डायमेंशन सेम है. तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है, write a quantity which has same dimension as work. नोट करोगे इसको, पॉपुलर क्वेश्चंस में से है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. राइट अ क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन सेम एज वर्क. यहाँ पे आपको ये दोनों मैंने इसलिए जोड़ के दिखा दिए, जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है उनको इस तरह से पेयर करते चलो अपने नोट्स में. तो तुमको जब रिवाइज करोगे तो पता रहेगा कि अच्छा डायमेंशन ऑफ वर्क एंड टॉर्क सेम है. तो चाहे सवाल ये पूछा जाए कि राइट टू क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन, और चाहे सवाल ये पूछा जाए कि राइट डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी विच हैज सेम एज डायमेंशन ऑफ टॉर्क, यू आर फुली प्रिपेयर्ड. ठीक है ना. तो नोट्स तैयार करने के लिए जो मैं पूरा लिख रही हूँ, इट्स एक्चुअली द नोट्स द वे यू शुड राइट द नोट्स. तो ये तुम्हारा पूरा तैयार है. आगे बढ़ते हैं. Now an interesting point. If I ask you write dimensional formula of kinetic energy, then you will use the formula half mv square. एक important point क्या हो गया इसमें जो half आ रहा है that is a number. So a number is dimensionless quantity. It does not have any dimension, right? So half को तो हमने देखो डायमेंशनल फॉर्मूले में अलग ही कर दिया बिल्कुल. अब हमारे पास बचा क्या, मास और वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जीज डायमेंशंस विल बी डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर. नाउ डायमेंशन ऑफ मास इज m, dimension of velocity is lt-1 and its square. So you will have ml2t-2, and you remember that energy was having the same dimensional formula. So it doesn't matter कि आप हाफ mv स्क्वायर से निकाल रहे हो या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से. इफ इट इज एनर्जी द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम. अगर हम बात करें हीट एनर्जी की तो वो हीट है, फिर भी वो एनर्जी है क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा. क्लियर हो रही है ये बात. अब प्रेशर लो. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो हमने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया.
mLT-2 फोर्स का और एरिया का L2. L कैंसिल हो गया एंड यू विल हैव mL-1. L ऊपर जाएगा तो L-1 एंड T-2. अब एक और देखो, स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट के लिए तुम अपने 8th के कॉन्सेप्ट पर जाओ या 10th के कॉन्सेप्ट पर जाओ. You have studied that heat energy can be written as mass into specific heat into change in temperature. कंफ्यूज नहीं होना यार, ये टाइम नहीं है. चेंज इन टेम्परेचर है, तुम्हें पता है. तुमसे पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का. सो राइट S on the left side and take all the terms on the right side. So it's Q upon m delta T. Now dimension of specific heat will be dimension of heat energy upon dimension of mass into dimension of change in temperature, which obviously be a temperature. So we are not interested in change, temperature, the quantity. ठीक. अब हीट एनर्जी mL2T-2. एनर्जी देखा और तुरंत हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया. फिर मास और टेम्परेचर को, अब यहाँ पे ये नया सिंबल आ गया. अभी तक हम m, l और t से काम चला रहे थे. टेम्परेचर के लिए आप k या थीटा यूज़ करेंगे और अब इसमें से m तो चला गया. तो देखो हमने ऐसा नहीं कि m को गायब कर दिया, हमने लिखा m⁻0. दैट स्पेसिफिक हीट डज नॉट हैव द डायमेंशन इन मास. इसका मास से लेना देना नहीं है. Then L2 T-2 and theta to the power -1. So today we discussed all those quantities which you are already familiar with. Next class हम उन quantities को लेंगे जो आपके लिए नई हैं, जिनका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक से उन पर क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे.